This is Tahneem Nadeem, the Director of Student Society of Actuarial Science from University of Karachi. Let's welcome on board Mr. Hatim Mastawala, the Managing Director of Badri Management Consulting and a fellow actuary and a certified accountant. Assalamu alaikum, sir. क्या हाल है आपके? Walaikum salam. Thanks a lot for having me here. First of all, I would like to thank you for joining us. आप इतनी well-known personality हैं और आपने students के लिए खासकर time निकाला. Thank you so much for it. No, most welcome. Let's start our podcast. Please share a little bit about yourself. I mean, look back to your school era because actuarial is not a very common field as compared to other like medical or engineering. अब कोई बचपन में हमें ये कहता हुआ नजर नहीं आता है कि हमें डॉक्टर वो एक्चुअली बनना है like डॉक्टर इंजीनियर. So how you get into it? ठीक है. In my case also actually I had started off in accountancy. मैंने ACCA से स्टार्ट किया था. जब ACCA कर रहा था तब लोगों को पता नहीं था ACCA क्या होता है. At that point in time a teacher of mine introduced me to actuarial sciences. That you know आपकी maths अच्छी है, you're good in maths, and I was working in the insurance industry at that time. So then I started off with actuarial science, and literally वही था कि when I was studying for this तब भी यही होता था कि लोगों को पता नहीं ये फील्ड है क्या. जी exactly. अच्छा, और जो आपके एक्सपीरियंसेस के बारे में बताएं कि आपने कहाँ वर्क किया, किस तरीके से. So I had started off with Allianz EFU in their finance department. So at that time I was like accountant. I was studying for ACCA and giving ACCA exams. After 1 year of working there, I had completed ACCA. फिर उसके बाद I started off with actuarial sciences, giving my exams. After that, I started working with Siddharth Heather, which is an actuarial consultancy in Pakistan. It was at that time, I guess. So SIR consultant. It's the same thing. So they go with both the name. And SIR as well. And at that point in time, it was a member firm of ENY, and then later on it became part of Watson White. So it was mainly most of the work was actuarial consultancy. लेकिन उस टाइम पे इतनी requirements नहीं होती थी जो कि अब हो रही है कि insurance companies require you to do a reserve valuation on a quarterly basis, annual reporting होती है और बहुत से दूसरी किस्म की reporting होती है. So at that point in time, it was mainly some work on the life side, and फिर दूसरा actuarial consulting work like business plans and all that. And after yes, please. So after that, then I worked for a brief period with Tokio Marine, and then mainly with ADNIC, Abu Dhabi National Insurance Company. वहाँ पे I spent around 5 years setting up the actuarial department over there. It's a very large non-life company, but they did not have any actuarial unit at that point in time. And then after ADNIC, like Ali and I, we set up Badri. Why and how do you start Badri? I mean, it was your dream or something else? Like ये जो आपकी personality में एक combination है, एक entrepreneur और actuary का, and not an ordinary entrepreneur. हम देख रहे हैं कि आपकी जो firm है, in just 7 years lead कर रही है actuarial market में. So ये किस तरीके से ख्याल आया आपको, एक था आपका या अचानक से, इसके पीछे का थोड़ा सा background हमें बताएं. ये तो नहीं था, it was a dream. It was more of like both Ali and I, we have worked both in consulting and corporate environments. तो consulting का एक अपने फायदे हैं, corporate के अपने फायदे हैं, लेकिन corporate में फिर politics भी होती है, अपने issues भी होते हैं. So we were just thinking कि why don't we do something on our own? And both of us are from an actuarial background. We worked together as well in the past. So we thought that the main thing that we can do is set up our own actuarial consultancy. So उसके बाद we started it off. And it has worked well because the timing was also good. उसी वक्त regulations आ रही थी in the UAE market और हम लोग खुद भी UAE में थे, तो it helped a lot. Nice, mashallah. Whenever we talk about actuarial, so the exams are the main part of it, or I guess say कि very important. Like without exam, actuarial कुछ नहीं है. So what do you think? How critical are for SO exams for undergraduate students? I would say it's very, very important. Yeah. Exactly. Because इस field में, like if you take a look at the accounting field, जो CA कर रहा होता है, by the time until they do not complete the articles and they do not qualify,
उनकी वैल्यू में फर्क रहता है। सही। सेम थिंग अप्लाई वहां पे तो बहुत ज्यादा फर्क होता है। जब तक आप क्वालिफाई नहीं करते हो, यू आर ऑन स्टाइपेंड, यू आर नॉट इवन ऑन अ प्रॉपर सैलरी। Actually, में ये होता है कि at least you start off working in a job, and regardless of the exams, you can get a job and you can start working and grow. लेकिन एक growth आपकी फिर limited होगी। You there are a few actuaries who are not like कुछ एग्जाम दिए, क्वालिफाई नहीं किया है, वो सीनियर पोजीशन पे भी है, तो ऐसा भी एक्सेप्शन होते हैं। लेकिन जनरली स्पेशली बिकॉज ऑफ द कंपटीशन नाउ, it is very important for you to have given exams by the time you enter, like even before entering work, like your working life, you should have given exams. और फिर उसमें प्रोग्रेशन बहुत जरूरी है। The earlier you qualify in your career, the better it is for you, because उसके बाद फिर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस स्टार्ट होता है। ठीक है, और आप कोई टिप देना चाहेंगे, टिप्स जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं एग्जाम से रिलेटेड, कि किस तरीके से क्या करें, टाइम मैनेजमेंट अपने अंदर पैदा करें या क्या करें जिससे एग्जाम्स जल्द से जल्द उनके क्लियर हो जाएं? आई थिंक एक्चुअली साइंस में जो एक सॉर्ट ऑफ ड्रॉबैक है वो ये होता है कि एग्जाम्स ऑप्शनल होते हैं। ओके। कि ओके इस अटेम्प्ट में दे देंगे, नहीं है तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में दे देंगे। तो क्योंकि वो ऑप्शनल होते हैं, लोग थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं। one thing that I tell everyone is be disciplined in your studies. सही। 6 महीने के बाद अगर एग्जाम हो रहा है तो इसका ये मतलब है आपको 6 महीने लगेंगे उसकी पढ़ाई करने में। आप ये नहीं कर सकते कि आखिरी के 10 दिन या आखिरी के 15 दिन आपने कोर्स मटेरियल पढ़ लिया, एग्जाम्स प्रैक्टिस कर दिए, एंड यू गो एंड गिव द एग्जाम्स। तो इसमें इट इज इम्पोर्टेंट दैट यू स्टडी कंटिन्यूअसली थ्रू आउट। 2 घंटे 3 घंटे दिन के रोज आप पढ़ो, ताकि बाय द टाइम यू नियर योर एग्जाम्स you have full control over your course material, and फिर आपको सिर्फ एग्जाम प्रैक्टिस करनी है towards the end part. So that discipline is very important. And same guidance for उन लोगों के लिए जो जॉब के साथ साथ एग्जाम्स दे रहे हैं, 2 to 3 hours आप डेली पढ़ो और अपने आप को कंसेक्यूटिव रखो। ठीक है। जो जॉब के बगैर उसको तो फिर ज्यादा करना चाहिए। जब तक आपने जॉब स्टार्ट नहीं की है, आपको मे बी लाइक यू प्रॉब्ली हैव यूनिवर्सिटी, आई अंडरस्टैंड, बट दूसरे टाइम है आपके पास। जितने जल्दी सारी एग्जाम्स निकाल लोगे, तो इमेजिन यू आर एंटरिंग जॉब विद 3 or 4 एग्जाम्स पास ऑलरेडी, तो फिर आपकी ग्रोथ भी ज्यादा होगी। ठीक। व्हाट आर द मेन बेनिफिट्स ऑफ परस्यूइंग एक्चुरियल साइंस? क्योंकि ये जो है ना, पेरेंट्स को समझाना काफी मुश्किल होता है कि एक्चुरियल क्या है, फैमिलीज को आइडिया नहीं होता इसका। तो अगर हम उनके बेनिफिट्स बताएंगे तो मे बी थोड़ा सा आइडिया हो जाए। आपको पता है फैमिलीज में जिस तरह से होता है, क्योंकि उनकी तरफ से प्रेशर होता है कि आप भाई इंजीनियरिंग ही करो या फाइनेंस में चले जाओ या चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओ, इस तरह। तो बेनिफिट्स क्या बताए जाएं? आई थिंक इसका जो एक बेनिफिट है वो इस फील्ड का वो ये है कि फॉर मेनी इयर्स दिस वाज नॉमिनेटेड एज द बेस्ट जॉब। न्यूयॉर्क टाइम्स या 2-3 अलग-अलग मैगजीन सर्वे होते हैं, तो उसमें काफी अर्से तक ये टॉप जॉब्स पे रही है। उसका उनका जो एक क्राइटेरिया होता है ना, वो ये होता है कि स्टेबिलिटी कितनी है जॉब में, इन द सेंस कि जैसे कुछ फील्ड होती है जिसमें कुछ लोगों को बहुत अच्छे इनकम आ रही होती है और अ लॉट ऑफ पीपल आर अनएम्प्लॉयड। इवन इफ यू लुक एट लेट्स से टीवी स्टार्स, तो जो जिनको पैसे मिल रहे हैं उनको बहुत ज्यादा मिल रहे होंगे, और जो नहीं सक्सेसफुल रहे वो लोग काफी स्ट्रगल करते हैं। लेकिन एक्चुअल फील्ड ऐसी है कि जिसमें इट्स एवरीवन सॉर्ट ऑफ बेनिफिट्स इन द लॉन्गर रन इन द फील्ड। और इनफैक्ट एक चीज जो मैंने नोटिस किया, आई हैव नेवर सीन एन अनएम्प्लॉयड एक्चुअली। जॉब्स जाती है, सीनियर लोगों की, क्वालिफाइड लोगों की जॉब्स गई हैं बिकॉज ऑफ व्हाटएवर रीजंस, बट दे हैव बीन एबल टू गेट अ जॉब इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड। तो इट्स अ लॉन्ग टर्म करियर के हिसाब से इट्स अ गुड फील्ड, प्लस इट इज एन इंटरेस्टिंग फील्ड इफ यू हैव इंटरेस्ट इन मैथ्स एंड नंबर्स। So a lot of the work is around numbers, projection. तो अगर आपको उन चीजों में इंटरेस्ट है तो you'll find the field quite interesting. Thank you. Our international certification is important for doing job in firm or company. हम काफी लोगों को ऐसा देखते हैं कि entry level पे उनकी job हो जाती है without and with exam. So इसका क्या आप कहेंगे? हो जाती है, जॉब नहीं मिलेगी, लेकिन फिर ये भी है कि अब जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, if you're getting people with let's say 2 exams pass, let's say if you are evaluating and we have 2 resumes, एक के पास 2 एग्जाम्स है, एक के पास एक भी एग्जाम नहीं है, तो वी विल प्रेफर अ पर्सन विद 2 एग्जाम्स। Okay. जो भी जो एंट्री लेवल पे आ रहा है उसमें टेक्निकली कोई इवैल्यूएशन नहीं होती है कि इसको कॉन्सेप्ट कितने इनके क्यों एक्सपीरियंस नहीं है, सो वी डोंट एक्सपेक्ट द पर्सन टू नो a lot of technical things.
बट उसकी ग्रोथ कैसी नजर आ रही है हमें. So that is sort of thing that we see. Okay, what are the main three skills which you think very useful in doing work in actuarial firm? कौन सी skills आपके पास होनी चाहिए? Like बहुत important है, उसके बगैर आप नहीं चल सकते. I would say एक तो मैंने आपको बताया discipline. Because earlier part of your career when you're giving exams, it is very important for you to be passing those exams. तो उसके लिए एग्जाम पास के लिए डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है ऑफ स्टडीज. और हर किसी का अपना रूटीन होता है. कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सुबह उठते हैं 2 घंटे 3 घंटे पढ़ाई करेंगे फिर काम पे जाएंगे. कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि लाइक मेरा एक अपना रूटीन होता था. आई यूज्ड टू कम बैक फ्रॉम ऑफिस, आधा घंटा 1 घंटा सो लिया, फिर लेट नाइट तक आपने पढ़ाई कर ली. So that is all very important. So discipline is one thing, persistency. Because होता ये है कि these are difficult exams और बहुत सारे लोग फेल होते हैं. तो उसमें नहीं कि आपने एक दफा एग्जाम दिया फेल हो गए तो यू गेट disheartened. उसमें ये होना चाहिए कि नेक्स्ट अटेम्प्ट शुड बी बेटर देन योर प्रीवियस अटेम्प्ट. So that persistency is important. Secondly, there should be a hunger for growth कि मुझे अब आगे बढ़ना है. एग्जाम्स में, काम में मुझे ज्यादा सीखना है, मुझे आगे बढ़ना है. So that will help you to progress in your career. और कभी के कुछ लोग ऐसे जो काम मिलेगा वो काम कर लेंगे, that's fine. Their experience is not growing. कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा नई चीजों में ट्राई करते हैं. या कोई भी नया प्रोजेक्ट आता है तो दे आर द फर्स्ट वन टू वॉलंटियर कि हाँ हमें ये ट्राई करना है. बिकॉज जब वो खुद कर रहे होंगे तो उसमें उनकी भी लर्निंग होगी. बिल्कुल. एंड जब अगर हम बात करें सॉफ्ट स्किल्स की तो उसमें क्या प्रेफरेबल है? Soft skills are also very important in our field because जो एक actual exams है जो lacking है that is कि they don't cover a lot of soft skills. So if you're studying for accountancy, you're studying from MBA कर रहे हो, BBA कर रहे हो, कोई किसी और फील्ड में जाते हो, they also teach you the soft skills. In our field, the soft skill is not part of the curriculum. कुछ हद तक communication बन गया है, लेकिन generally it's not covered. So normally होता है ये कि actuaries are very bad in communicating. They become very technical. They don't look at who the audience is. उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि when you're not able to, if you're not able to communicate or you're not able to understand कि सामने वाले के जहन में क्या है. Exactly. So that is an area where we sort of lack as a overall community or body. तो उसमें अब दूसरी चीज है कि सॉफ्ट स्किल में एक बेनिफिट ये है कि there's a lot of courses available online. फ्री कोर्सेज बहुत है, यूट्यूब वीडियोस है, कोर्स है और ऐसी वेबसाइट भी अवेलेबल है जिसमें यू कैन लर्न अबाउट प्रेजेंटेशन, यू कैन लर्न अबाउट कम्युनिकेशन, नेगोशिएशन हो गया, स्ट्रैटेजी हो गई. बिकॉज वंस यू स्टार्ट लुकिंग एट द बिगर पिक्चर दैट विल हेल्प यू ग्रो. एग्जैक्टली. अच्छा, आपकी एक बात से एक सवाल पूछती हूँ मैं आपसे. लाइक आपने कहा कि जो एक्चुअरीज होते हैं ये काफी थोड़े से ड्राई होते हैं, उनको इस तरह प्रेजेंटेशन देना नहीं आती या उनकी इस तरह वाली स्किल्स नहीं होती कि वो ऑन बोर्ड आ सके. आप लोगों का क्या रीजन है? लाइक हम बद्री देखते हैं कि बद्री की जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज हैं माशाल्लाह वो दूसरी फर्म में एक्टिव हो गई. जैसे जैसे आप लोग काफी ज्यादा एक्टिव हैं ऑन लिंक्डइन और अदर कभी कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं एंड डिफरेंट सेमिनार्स हो रहे हैं, एंड फिर जब आप वेलकम करते हैं अपने न्यू एम्प्लॉयर का तो बहुत वार्मली वेलकम करते हैं. दूसरी फर्म्स ऐसे नहीं करती थी, लाइक अब करने लगी हैं. तो इसके पीछे क्या रीजन है और किसको आप क्रेडिट देना चाहेंगे कि इनके आइडियाज होते हैं या क्या, ये बताएं. आई थिंक इसमें हमने ये किया हुआ कि जिसकी जो एक्सपर्टीज है उनको दिया हुआ है. तो मार्केटिंग वाला काम है, देयर इज अ पर्सन इन चार्ज ऑफ मार्केटिंग, ही इज आल्सो ऑन द कॉल राइट नाउ, हारिस. तो ही इज द वन लुकिंग आफ्टर मार्केटिंग. ओके. प्रेजेंटेशन हो गई, मार्केटिंग होगी, तो ही इज द वन लुकिंग. We were one of the first few firms who had a proper HR department. And we have a very strong HR department जिसमें like it's now in fact we have 5 people over there जो कि अलग-अलग एरियाज को देख रहे होते हैं. तो फ्रॉम इंटरव्यूइंग टू ऑनबोर्डिंग टू कंटिन्यूअस ट्रेनिंग टू अप्रेजल्स, तो जो पूरा साइकिल होता है वो दैट इज अंडर द एचआर डिपार्टमेंट. और इवन जो इंटरव्यूज भी हो रहे होते हैं दोस आर नॉर्मली कंडक्टेड बाय द एचआर टीम. सो दैट हैज सॉर्ट ऑफ हेल्प्ड अस अ लॉट के जिसकी जो एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है वो उनको दिया हुआ है. हमें पता है हमें क्या आता है, उनको क्या करना है उनको पता है. तो इट इज अ टीम वर्क, इट्स नॉट के एक का काम है इसका काम है, overall teamwork. Okay, what do you think about regarding actuarial scope in Pakistan coming era? I think पाकिस्तान में अब ये एक अच्छी चीज हो रही है कि the scope is increasing a lot.
तो पहले क्या होता था, सिर्फ लाइफ कंपनीज के अंदर एक्चुअल जॉब्स आती थी और थोड़ा बहुत कंसल्टेंसीज में आती थी। अब ये है कि क्रॉस द बोर्ड एक एक्सेप्टेंस आ रही है। इनफैक्ट आई ऑल्सो सीन जॉब्स बीइंग एडवर्टाइज कि रिस्क मैनेजमेंट में या बैंक्स में दे वांटेड टू हायर। तो ये चीज है कि अब एक इंक्रीज हो गया। सेकेंडली ये होने लग गया कि नॉन लाइफ में अब काफी एक एक्सेप्टेंस आ रही है कि आहिस्ता आहिस्ता वी आर स्टार्टिंग टू सी एक्चुअली इन नॉन लाइफ इन पाकिस्तान एज वेल। तो उसमें क्या होगा कि वंस दिस फील्ड ओपन अप, जैसे मिडिल ईस्ट में यही हो रहा है कि लॉट ऑफ नॉन लाइफ कंपनीज आर नाउ हायरिंग। लॉट ऑफ इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द वर्क दैट वी आल्सो डू इज नॉन लाइफ। तो एक नॉन लाइफ का एरिया खुल रहा है, सेकेंडली बैंकिंग और अदर फाइनेंशियल सर्विसेज में भी हो रहा है, और एक तीसरा जो कि काफी इंपॉर्टेंट एरिया है दैट इज IFRS 17। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो था, जो पहले इंश्योरेंस अकाउंटिंग थी, दैट स्टैंडर्ड इज चेंजिंग अ बिट नाउ, इनफैक्ट इज चेंजिंग अ लॉट। उसमें क्या है, फॉर फाइनेंशियल क्लोजिंग एज वेल, जो कि पहले सिर्फ फाइनेंस डिपार्टमेंट करता था, उसमें अब उस वाले प्रोसेस में भी एक्चुअल इन्वॉल्वमेंट काफी एक्सटेंसिव होगी। इफ यू लुक एट प्रीवियस ईयर 2020, जबकि पैंडेमिक था, हायरिंग नहीं हो रही थी, ग्रेजुएट्स को जॉब नहीं मिल रही थी, एक्चुअल में काफी हायरिंग हुई है। ऐसे ही सो आई थिंक दिस इज वन एरिया के वन फील्ड इन पाकिस्तान जो कि ग्रो कर रही है। प्लस ये भी एक 3-4 और भी कंसल्टेंसीज हैं इन पाकिस्तान जो कि इंटरनेशनली काम कर रही हैं, तो उसकी वजह से भी एक जॉब मार्केट रहती है। Okay, now a fun question. If you not had been an actuary, what could have been your profession? I think I started off with accounting, so if I had not diverted to actuarial, most likely फिर मैं accounting में ही होता, finance में। Okay, what do you usually do in your free time? Any hobbies? Haven't you work in consulting में free time नहीं होता? फिर भी कुछ तो होता होगा, like खुद को relax करने के लिए। I think we're trying to keep things under control, तो टीम काफी strong है, तो इतना प्रॉब्लम नहीं है। Normally ये होता है कि I try to divide the free time into two areas, एक pure sort of relaxation और cooling down, कि कोई सीरीज देख ली या मूवी देख ली, Oh, nice. या कोई फिक्शन की बुक है that में। And secondly I also dedicate time to self development, कि कोई कोर्स कर लिया या कुछ नया सीख लिया, कोई नॉन फिक्शन की या डेवलपमेंट की किताब पढ़ ली, तो उसमें क्या होता है कि it sort of keeps the balance in the free time, and obviously family is there as well. Nice. Badri is the only firm which provides scholarships of University of Karachi students. So इसके पीछे क्या रीजन था और इस इनिशिएटिव का मकसद, ऑब्जेक्टिव क्या था? इसमें basically it started off with a conversation we were having with certain colleagues. In fact, I still remember कि हम रियाद में थे and we were just sitting over dinner. So one thing that we noticed was कि पहले तो हमारे पास काफी लोग हैं जो कराची यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स हैं। इनफैक्ट अभी भी सबसे ज्यादा कराची यूनिवर्सिटी के ही है, we have 19 graduates from कराची यूनिवर्सिटी right now. लेकिन जो न्यू इनटेक आ रहा है, हमने देखा कि we are getting it from like a lot of people are coming in from other universities. So when I sort of asked the question कि ऐसे क्यों हो रहा है, तो उसने जवाब दिया कि KU में इतनी अवेयरनेस नहीं है एग्जाम देने की, या लोग एग्जाम्स वो वेट करते हैं हम लोग जॉब स्टार्ट करेंगे फिर हम एग्जाम देंगे, वो फिर एक कैश 22 बन जाता है, बिकॉज आपको जॉब अच्छी जॉब तब मिलेगी जब आपके पास एग्जाम्स होंगे। So in order to encourage that, we actually started this program. अभी तक 2 बैचेस हो चुके हैं, आई थिंक एक बैच तो कंप्लीट हो गया है, और रिस्पांस बढ़ता जा रहा है। सो आई थिंक पहले वाले बैच में ये था कि वी हैड अप्रोक्सीमेटली 15 एप्लीकेंट्स, so we selected 5 and 2 of them have passed the exam. So in the second batch, जो पहले वाले में 15 applicants थे, second we had 29 applicants and we selected 6 from them. So they are in the process of studies right now. और अब उसको भी हम लोग थोड़ा सा इवॉल्व करते जा रहे हैं कि कंटिन्यूस फॉलोअप उनके साथ भी चल रहा है, उनको भी गाइडेंस मिल रही है। जो सीनियर्स है जिन्होंने एग्जाम्स पास किए हुए वही वाले, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ देम आर आइदर डूइंग प्रोबेबिलिटी या फाइनेंशियल मैथमेटिक्स। तो जिसने वो एग्जाम्स पास किए हुए फिर उनको गाइड भी करते जा रहे हैं, और इनके एग्जाम्स अब नवंबर और दिसंबर में है। सो वी आर होपिंग कि दिस टाइम द पास रेट विल बी बेटर देन प्रीवियस ईयर एंड वी विल बी स्टार्टिंग अ न्यू बैच होपफुली इन दिसंबर। ओके, अच्छा, और ये काफी अच्छा भी पॉजिटिव रिस्पांस मिला, लाइक आप सही कहा कि पहले इतनी अवेयरनेस नहीं थी, फिर आई,
और ये पॉडकास्ट करने का भी जो है ना स्पेशली मकसद यही है कि आप जैसी पर्सनालिटी को लोग आइडियलाइज कर सकें और पता चल सके, अवेयरनेस आ सके कि एक्चुअली जैसे क्वेश्चंस भी हमारे इसी तरीके के थे कि स्किल्स क्या क्या रिक्वायर्ड होती हैं, इंपॉर्टेंस क्या है एंड बेनिफिट्स क्या हैं। तो यही मकसद है कि केयू की जो स्टूडेंट्स हैं उनमें अवेयरनेस पैदा हो सके एग्जाम्स की और करियर गाइडलाइंस मिल सके। मैसेज क्या देना चाहेंगे आप स्टूडेंट्स को? I think message में quite a few things have been covered, especially to do with exams. एक चीज जो मैं कहना चाहूँगा, especially when you're fresh, when you're coming out in the field, keep a long term vision. because starting में होता क्या है कि people start comparing कि मुझे यहाँ से ये ऑफर आई है, मुझे यहाँ से ये ऑफर आई है, यहाँ से ये ऑफर है। जितनी भी कंपनी अभी काम कर रही है इन द एक्चुअल फील्ड, दे आर ऑल गुड कंपनी। ये नहीं कि कोई भी कंपनी अच्छी है, कोई भी कंपनी बुरी है, लेकिन हर कंपनी का एक अलग कल्चर है। तो व्हाट द स्टूडेंट नीड्स टू डू इज इंटरैक्ट विद दोस पीपल। आप उनके ऑफिस जाओ, उनके लोगों से मिलो, उनके आपके सीनियर होंगे जो कि वहाँ पे काम कर रहे हैं, और उनसे समझो कि हर कंपनी में काम किस तरीके से होता है। देन यू सॉर्ट ऑफ डिसाइड कि अच्छा मुझे इस वाली फॉर्म में जाना है या मुझे इस वाली फॉर्म में जाना है। स्टार्टिंग में पे को नहीं देखो, जो स्टार्टिंग लेवल की जो पे होगी उसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं होगा, ठीक है। लॉन्ग टर्म पे आप लॉन्गर टर्म कॉन्सेंट्रेट करो। उससे क्या होगा कि इफ यू आर ज्वाइनिंग अ फॉर्म जहां आप इंजॉय करते हो, ठीक है, जहाँ पे आपके जानने वाले होंगे, यू एंजॉय होगा। और जो सैलरी डिफरेंसेस होते हैं ना, वो ओवर टाइम दे सॉर्ट ऑफ वैनिश आउट, so that is not that important. सेकंड चीज ये है कि अगेन टू डू विद सॉर्ट ऑफ लॉन्गर टर्म, जो भी हमने बात की थी सॉफ्ट स्किल्स की, improve your soft skills, improve your presentation, communication, सामने वाले से किस तरह बात करनी है, उसके जहन में क्या है। lot of courses on negotiation are also there, वो आप स्टडी करो। एक वो साइड हो गई। दूसरी साइड ऑन द टेक्निकल साइड, a lot of people talk about software like R, Python, yes, वो रेज्यूमे पे लिखा होता है लेकिन प्रैक्टिकली कोई यूज नहीं करता। तो बिफोर आप इमेजिन यू आर गोइंग इनटू एन इंटरव्यू और आप उसको बोलते हो देखो मैंने पाइथन पे ये वाला प्रोजेक्ट किया था, मैंने ये डेटा उठाया था, इस पे ये मैंने एनालिसिस किया था, ये मेरा आउटपुट है। इट कैन बी एनीथिंग, इट डजंट हैव टू बी टेक्निकल। आपको क्रिकेट का शौक है, क्रिकेट की स्कोर देखिए, उस पर एनालिसिस करो। लेकिन वंस यू डू दैट, उसमें क्या होगा कि सामने वाले को कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, ही नोज व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट। Because of that, soft skills are important. Your own presentation and appearance is also very important. Thank you so much for your time again. आपने टाइम दिया, आपके हम बहुत ज्यादा मशहूर हैं। और पता है जब आप अनाउंस हमने किया स्टूडेंट्स की तरफ से, हमें बहुत ज्यादा मिला कि आप ये चीज बहुत अच्छी कर रहे हैं, और आपको भी सब थैंक यू कह रहे थे। इवन हमारे जो चेयरमैन ऑफ डिपार्टमेंट हैं, टीचर्स हैं, वो भी कह रहे थे कि आपने इतनी वैल्यू एंड पर्सनैलिटी ने आपको टाइम दिया। और मैं एक और बात कहना चाहूंगी, जिस तरीके से आपका फॉरेन से पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया था, लाइक जब मैं आपको मेल कर रही थी मैं समझी थी कुछ नहीं होने वाला, लेकिन आपका फॉरेन पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया एंड देन फिर आपने सब चीजें अरेंज करवाई और आपने बार-बार पूछा, उसके लिए थैंक यू सो मच। Most welcome. And what I mentioned about visiting a company, so I would even encourage, even within our company, whenever someone wants to understand more, come visit us, speak to our HR department, Sure. speak to an employee, and we are also going to start an internship program. Okay. तो उसमें ये 2-3 महीने लाइक जो अभी विंटर ब्रेक आएगा उसमें यू कैन वर्क, यू विल गो टू सर्टेन कोर्सेज, तो आपको आइडिया होगा वेदर द फील्ड इज इंटरेस्टिंग फॉर यू और नॉट। यस यस, ओके, थैंक यू। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है आप जो इंटर्नशिप प्रोग्राम में शुरू करें। थैंक यू सो मच। अब आगे के इवेंट्स इंशाल्लाह हम आपके साथ करेंगे जो हमने डिसाइड किए थे, और डिटेल सेशन का इंतजार है अब हमें। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।